بہت ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز، میں ہوں صدف علی خان۔ ملاحظہ کی ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار، پنجاب حکومت کو 9 لاکھ ٹن گندم جاری کرنے کی ہدایت، چینی رپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، بحران میں ملوث افراد کو ہر صورت قانون کے شکنجے میں لانے کا عزم، ملک میں گندم کی طلب اور رفت کا سائنسی بنیادوں پر تعین کرنے کے لیے مستقل نظام تشکیل دیا جائے، وزیر اعظم عمران خان۔ کورونا کی وبا سے احسن طریقے سے نمٹ رہے ہیں، وائرس کی ٹیسٹنگ لیبارٹریز کی تعداد 129 تک جا پہنچی ہے، لاک ڈاؤن کا شور مچانے والوں کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، آنے والے دن سخت ہو سکتے ہیں، صورتحال سے بچنے کا واحد راستہ احتیاط ہے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شفیع فراز کی میڈیا بریفنگ۔ گندم اور آٹے کی وافر دستیابی اور قیمتوں کو قابو میں رکھنا حکومت کی ترجیح، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے اقدامات پر غور، ملکی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے طویل مدتی حکمت عملی تشکیل دی جائے گی، چیف سیکرٹریز گندم کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی کو یقینی بنائیں، وزیر اعظم عمران خان۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین لبریشن آرمی کے میڈیکل وفد کی ملاقات، کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے جامع اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال، آرمی چیف کا وبا سے نمٹنے کے لیے چین کی بروقت طبی امداد پر اظہار تشکر۔ بھارت کے پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے پر الزامات بے بنیاد ہیں، بھارتی الزامات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی جواب دیں گے، بھارت جس قسم کا رویہ اپنائے گا ویسا ہی جواب پائے گا، پاکستانی ہائی کمیشن کا عملہ واپس آئے گا تو بھارت کا عملہ بھی واپس جائے گا، بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ سلوک دنیا دیکھ رہی ہے، خود بھارتی عوام ہندوتوا سوچ سے نالا ہیں، عالمی برادری آج بھارت کو خطے کے امن کے لیے خطرہ سمجھتی ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بڑا بیان۔ مودی حکومت کے اقدام کا جواب، بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ نصب کرنے کے لیے 7 روز کی ڈیڈ لائن، نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ارکان پر بے بنیاد الزامات کی بھرپور مذمت۔ سعودی عرب میں مقیم افراد کو محدود پیمانے پر حج کی اجازت، کورونا کے پیش نظر بیرون ملک سے کوئی رواں سال حج ادا نہیں کر سکے گا، سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر صالح بن بنٹن کا وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ، مزید 3,946 افراد میں وائرس کی تصدیق، تعداد 1,85,064 ہو گئی، مزید 105 افراد جان کی بازی ہار گئے، مجموعی طور پر 3,695 جاں بحق، 73,471 صحتیاب۔ پنجاب میں گزشتہ 3 روز میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی، لاہور، ملتان، راولپنڈی کے ہسپتالوں میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ سمیت آکسیجن بیڈ کی تعداد میں دگنا اضافہ، کورونا ڈیوٹی کے دوران جاں بحق ہونے والے گریڈ 17 تک کے ملازمین کے لیے شہید پیکج کا اعلان، عید الاضحیٰ پر شہری حدود میں بکرا منڈیاں نہیں لگائی جائیں گی، وزیر اعلیٰ سردار عثمان گزار۔ کورونا کی روک تھام کے لیے خیبر پختونخوا کا اہم قدم، پشاور، مالاکنڈ، بنوں، ڈی آئی خان کے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن، 90,000 سے زائد افراد گھروں تک محدود، 14,000 سے زائد مسافر بیرون ملک سے پشاور پہنچے،
علامات رکھنے والے مسافروں کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کی میڈیا سے گفتگو۔ اسلام آباد کے مزید سیکٹر سیل کرنے کا فیصلہ۔ ضلعی انتظامیہ نے سیکٹر G6-1 اور 2، G10-4 اور G7-2 میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا پلان تیار کر لیا۔ اطلاق آج شام 7 بجے سے ہوگا۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری۔ ضلع پلوامہ میں مزید 2 کشمیری شہید، نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ملک بھر میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری۔ 39 اضلاع میں محکمہ زراعت، فوڈ سیکورٹی اور فوج کی مشترکہ ٹیمیں سرگرم عمل۔ 22 لاکھ ایکڑ پر کنٹرول آپریشن، 8 کروڑ 58 لاکھ ایکڑ کا سروے مکمل۔ دنیا بھر میں کورونا سے 92,85,000 افراد متاثر، 4,77,000 سے زائد لقمہ اجل بن گئے، 50 لاکھ سے احتیاط۔ امریکہ میں 1,23,000، برازیل میں 51,500 اموات۔ مزید 7 قومی کرکٹرز میں کورونا کی تشخیص۔ فخر زمان، کاشف بھٹی، محمد حفیظ، محمد حسنین، عمران خان، محمد رضوان اور وہاب ریاض کے کورونا ٹیسٹ مثبت۔ اس سے قبل حیدر علی، حارث رؤوف اور شاداب خان کے ٹیسٹ بھی مثبت آئے تھے۔ کھلاڑیوں کو فوری طور پر سیلف آئسولیشن میں جانے کی ہدایت۔ ناظرین، پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ پی ٹی وی نیوز پر صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أعرب مجلس الوزراء الفيدرالي الذي ترأسه رئيس الوزراء عمران خان عن الارتياح، واعتمد العديد من الخطوات لتوفر القمح بكميات وافرة في البلاد. وتم التوجيه بتوفير 900 ألف طن من القمح إلى إقليم البنجاب، وتم إطلاع الاستماع بأن المخزون لدى الدولة من القمح 250 مليون طن، بينما الطلب يبلغ 270 مليون طن. كما تم دراسة منح رخص للمستوردين لاستيراد المادة. كما أعرب الاجتماع الذي ترأسه دولة رئيس الوزراء عمران خان عن الارتياح إزاء قرار المحكمة فيما يخص بالسكر. كما تم إطلاع الاجتماع بأنه بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تم حصر فيروس كورونا في البلاد. عقد اجتماع برئاسة دولة رئيس الوزراء عمران خان حول توفير تنازلات فيما يخص بالتحويلات للباكستانيين المغتربين. وأطلع المساعد الخاص سيد ذو الفقار عباسي بأنه تم إرسال حوالي 1 مليون باكستاني إلى الخارج خلال الأشهر 18 الماضية،
وقال بأنه بالرغم من وضع كورونا إلا أن باكستان شهدت استقرار في عملية التحويل قياسا بالدول الأخرى. وقال بأنه في أيار من العام الماضي كانت التحويلات 20.2 مليار دولار، في حين وبالرغم من كورونا في الأشهر الأربعة الماضية فقد تم التحويل في شهر أيار الماضي بمعدل 20.5 مليار دولار. استقبل رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوة في راولبندي الفريق الطبي التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني، وقد تبادل وجهة النظر حول الخطوات الشاملة التي تتخذها باكستان للتعامل مع فيروس كورونا. وقال بأن رئيس أركان الجيش يتقدم بالشكر من الصين لتوفير التسهيلات الطبية من أطباء ومعدات طبية للتعامل مع وباء كورونا، بينما أكد الجانب الصيني تعاونه مع باكستان في جميع المستويات. قال معالي وزير الخارجية شاه محمود قريشي بأن باكستان لن تقف متفرجة إزاء الاتهامات الهندية اللا أساس لها من الصحة، بل سترد على ذلك. وقال بأن اتهامات الجانب الهندي ضد أعضاء السفارة الباكستانية لا أساس لها من الصحة. وقال بأن باكستان سترد مثل في حال إبعاد الهند الدبلوماسيين الباكستانيين. وقال بأن الهند وبعد الهزيمة من الصين تبحث عن الأعذار للقيام بعملية الرأي المزيفة. بارت باكستان وبشدة الاتهامات الهندية بغية تقويض عدد الدبلوماسيين الباكستانيين في السفارة في نيودلهي إلى 50%. وقد تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الهندية في إسلام آباد إلى وزارة الخارجية للتجديد إزاء الاتهامات الهندية اللغوية. واستنادا للمتحدث باسم وزارة الخارجية السيدة عائشة فاروقي، فقد تم إطلاع الجانب الهندي بأن باكستان سترد بالمثل في حال تقليص أعضاء الدبلوماسيين في الهند، وتم تحديد موعد 7 أيام على تنفيذ القرار. تقدمت المملكة العربية السعودية بالاعتذار من استقبال الحجاج الكرام في خارج المملكة، واستنادا إلى بيان صادر عن وزارة الحج السعودية فأن المواطنين السعوديين وحملة الإقامات يمكنهم أداء الفريضة الحج. هذا وقد اتصل وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور صالح بن بنتن بمعالي وزير الشؤون الدينية في نور الحق قادري وأطلعوا بالقرار. أصيب 3946 بالمزيد بفيروس كورونا، وتوفي 105 خلال الساعات 24 الماضية، ليصل مجموع المصابين بالفيروس إلى 185,034، ووفاة 3695، في حين تماثل إلى الشفاء حتى تاريخ 73,471. أخيرا قررت إدارة الإسلامات خلق المزيد من 4 قواطع اعتبارا من مساء اليوم بغية السيطرة على انتشار وباء كورونا. والقواطع هي G104 وG61 وG62 وG72. وبهذا النبأ يسعد سبيل في نهاية نشرة الأخبار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से ऐवाम तक में नादिर मिर्ज़ा की जानिब से खुश आमदीद। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट में बजट इजलास हो रहा है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बजट के अलावा वहाँ पर हर चीज़ डिस्कस हो रही है।
موقع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تنقید برائے تنقید والی صورتحال ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں، سندھ کی حکومت کو دیکھیں، تو وہ جس طرح سے اس وقت اس نے وفاق کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے اور یہی تمام چیزیں نشانہ بنیں گے. لیکن دوسری جانب جب ہم بجٹ اجلاس کی بات کرتے ہیں تو ایسی ہی صورتحال کچھ سندھ میں بھی ہوئی ہے. جب سندھ میں بجٹ اجلاس ہوا، بجٹ پیش کیا سندھ گورنمنٹ نے، تو ایم کیو ایم جو کہ وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے، اس نے وہ بجٹ آج نامنظور کر دیا. اور ان کا صاف یہ کہنا تھا کہ کراچی کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا، کوئی نیا ترقیاتی پیکج بھی نہیں، اور ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر بھی الزام لگائے صوبائیت کے حوالے سے، عضویت کے حوالے سے. وہ ایک اپنی الگ جگہ بحث ہے، لیکن اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیونکہ کراچی وہ شہر ہے جس نے سب سے زیادہ اس پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں. پی ٹی آئی وہاں کی جو پی ٹی آئی کے بعد اگر کوئی جماعت ہے تو وہ سب سے وفاق میں ان کی حصے دار بھی ہے، ان کی اتحادی بھی ہے. اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سردار اختر مینگل بی این پی کے سربراہ اتحاد سے الگ ہوئے، اور اس سے 2 دن قبل انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور آج وہ کراچی پہنچے. ویسے تو بتایا یہی گیا ہے کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ وہاں پر گئے ہیں. لیکن کچھ ذرائع سے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کی کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہونی تھی، اور ان کی شاید ایک ملاقات بھی متوقع تھی آصف علی زرداری صاحب سے، لیکن ابھی تک وہ نہیں ہو سکی. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. جو پینلسٹ ہیں، اس سے پہلے کہ میں پہلے ان کا تعارف کرا لیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر کامران صاحبہ، سینیٹر سحر کامران. ان کو بھی ہم پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم سحر کامران صاحبہ. وعلیکم السلام. اچھا، اس کے علاوہ برید اقبال صاحب ہیں، نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ایم کیو ایم کے منسٹر امین الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سب کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جو آج کے دن کے حوالے سے. کیا آپ جانتے ہیں کہ آج انٹرنیشنل وڈو ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں، یعنی بیواؤں کا عالمی دن. جب ہم بات کرتے ہیں بیوہ، کسی بھی عورت کی بیوہ کی، اور خاص طور پہ ہم اپنے معاشرے میں یا اپنے مذہب میں بات کرتے ہیں، اور اس دن کو یہ کہا گیا ہے اور اس چیز کو حقیقت کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ہم نے یہ دن نام کیا ہے کشمیر کی ان بیوہ خواتین کے جو آج بھی بھارتیوں کا اور بھارتی جو فوج ہے اس کے مظالم کا شکار ہو رہی ہیں. مختلف ان کے صورتحال ہے. ایک طرف تو وہ ہے جن کے شوہروں کو قتل کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے اس آزادی کی جدوجہد میں. دوسری وہ ہے جن کو آدھی بیوہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فورس ڈس اپیرنس بھی ہے، ان کے شوہروں کا پتہ نہیں ہے کہ بھارتی فوجیوں نے ان کو کہاں کر دیا ہے، وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ان کی زندگی ہے. ویسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ بھی ہمیں آپ کو وہاں پر پتہ ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے، ایک وہ خواتین جو کہ واقعی وڈو ہیں، ایک وہ خواتین جن کو ہاف وڈو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ ان کے شوہر ہیں بھی اور وہ نہیں بھی ہیں. غربت اپنی جگہ، لیکن سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو جب ایک عورت بیوہ ہوتی ہے تو وہ ان تمام چیزوں کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کا شکار ہو رہی ہے. تو ضرورت ہے اس وقت جب دنیا یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ کہاں ہیومن رائٹس ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، کہ کہاں کہاں کیا کیا مشکلات ہیں، کہاں کہاں ناانصافی ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہاں پر اس چیز کو بھی کنسیڈر کرنا دنیا کے لیے بہت ضروری ہے. میں واپس آتی ہوں اپنے پینل پر اور بات کرتی ہوں اپنے پینلسٹ سے. جی سحر کامران صاحبہ. جی جی. اچھا سحر کامران صاحبہ، ذرا آپ مجھے بتائے گا کہ اختر مینگل صاحب سے پیپلز پارٹی کے رابطے ہیں، کیے گئے ہیں؟ دیکھیے نازیہ، میں تو سیاسی بات ہم کریں گے ضرور، لیکن آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے، کشمیر. اور جب آپ بات کرتے ہیں کشمیری عوام کی، کشمیری خواتین کی، بالخصوص ان خواتین کی جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے شوہر، ان کے جو ہے گھر کے رکھوالے زندہ بھی ہیں یا نہیں، جن کو یہ دوز آر فورس وڈوز، اور ایک وہ جن کے ہسبینڈ جو ہے وہ شہادت نوش کر چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ عالمی جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کی باتیں تو ہم ضرور سنتے ہیں، بیانات ضرور سنتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی عملی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور اسپیشلی اس وقت جب کہ دنیا کووڈ وائرس کو فیس کر رہی ہے اور لاک ڈاؤن ہے، کشمیر میں تو دوہرا لاک ڈاؤن ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان خواتین کی اذیت اور ان کی زندگی کا المیہ. تو میں ضرور آپ کے پروگرام کی توسط سے جو عالمی انسانی حقوق کے ادارے ہیں میں ان کی توجہ ضرور چاہوں گی کہ آپ اس طرف بھی دیکھیے کہ آپ دن تو آبزرو کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ ان خواتین کا کرب، ان کا دکھ، ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا، کب تک اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پہ عمل نہیں کرا سکتی؟
अब आ जाओ आपके सियासी जो है सवाल की तरफ। देखिए, जहाँ पे जब तक सियासत होती है, सियासत में मुलाकातें, मशावरत, ये सब चीज चलती है। अख्तर मेंगल साहब अगर कराची में हैं और वो चाहेंगे कि वो सियासी क़यादतों से मुलाकात करें तो मुलाकात जरूर होगी। देखिए हम नहीं, मैंने तो ये आपसे पूछा ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि क्या आप इसकी तस्दीक कर रही हैं कि अख्तर मेंगल साहब जो है वो सर कराची में हैं, उनके राब्ते हुए हैं, और क्या कोई जरदारी साहब से मुलाकात मुतवक्के है? मेरे इल्म में नहीं है नादिया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो सियासी कायदीन है वो जरूर मुलाकातें करते हैं, और अगर कोई मुलाकात होगी तो मैं समझती हूँ कि बहुत खुशाइंद होगी, क्योंकि हम सबको मिल के पाकिस्तान के लिए काम करना है। ठीक है, सेनेटर वलीद इकबाल साहब के साथ से बात करती हूँ। वलीद इकबाल साहब, जरा आप फरमाइएगा कि क्या इसका करंट स्टेटस क्या है, क्योंकि आप लोग की एक टीम भी तश्कील दी गई है, असद उमर साहब, परवेज खटक साहब, कि वो मुलाकात करें और उनको एतमाद में लें, रूठे हुए इत्तेहादी को मनाएं। ये किस स्टेज पर है आप लोग का ये मनाना, और वो तैयार हो रहे हैं, मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? नहीं, इसका तो मैं ज़ाती तौर पे तो इसकी कोई तफसीलात आपको नहीं अपना पेश कर सकता, क्योंकि वो तो जो टीम जो तश्कील हुई है उसमें जिसमें परवेज खटक साहब हैं और असद उमर साहब हैं, जिसमें आपने कहा, और मुलाकात 1 या 2 गालिबन मुलाकातें वो कर चुके हैं। और बावजूद इस बात के कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कुछ नाराज़गी का इजहार किया है और वो असेंबली में किया है, उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी हमारी बलोच वो हॉस्पिटैलिटी और मेहमान नवाजी जो है उसके पेश नज़र ये हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, और वो इसलिए उन्होंने रिसीव भी किया पीटीआई की टीम को। और उसके अलावा मैं ये ज़रूर आपको अर्ज़ कर सकता हूँ अपने ज़ाती नॉलेज के और तजर्बे के हवाले से कि परवेज खटक साहब जो है वो बड़े एक तजर्बेकार सियासतदान हैं, और इस मामले में ख़ासकर कि अगर कोई हमारे कोलिशंस में तो ये होता रहता है कि अप्स एंड डाउन्स, और कभी नाराज़गी और कभी अपना उनको मनाना और सिलसिला। तो उस लिहाज से सबसे ज़्यादा जो स्किल्ड पर्सन हमारी टीम में हैं और इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त उनको चुना है, वो परवेज खटक साहब ही हैं। और मैंने उनको खुद 1-2 और मामलात में देखा है अपना नाराज दोस्तों के साथ गुफ्तगू करते हुए, उनमें बहुत स्किलफुल हैं वो। वलीद इकबाल साहब, आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि कोलिशन में ही होता रहता है, इत्तेहादियों में रूठना मनाना भी चलता रहता है, और अभी एमक्यू भी हमारे साथ है, पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है, इससे ज्यादा बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा था क्योंकि ये इन रिजर्वेशंस का इजहार उन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं किया, बारहा वो करते रहे, बारहा वो इत्तेहाद से निकलने की बात बॉन्ड भी करते रहे कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो कौन सी हर्डल्स हैं, वो कौन सी वजूहात हैं कि जो उनके साथ मुआहिदा हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं हो सका? देखें जी, अमल दरामद कुछ लिहाज से हुआ भी है, और ये मैं अर्ज करना चाहूँगा कि इस हद तक, बज़ाहिर इस हद तक नहीं हुआ जो कि अपना बीएमपी मेंगल वाले साथी जो हैं वो तसव्वुर कर रहे थे। इस वजह से वो एक खलीज सा आ गया हुआ है। लेकिन ये जो उनके 6 नुकात जिस पे एग्रीमेंट भी हुई है, मैं ज़ाती तौर पे ये नहीं समझता, और अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पर भी मैं नहीं ये समझता कि उनमें से कोई ऐसा मामला है जिस पे कोई अमल दरामद नामुमकिन हो। अहम मामले हैं, हसास मामले भी हैं, लेकिन अहम है ये मिसिंग पर्सनस वाला, बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के हवाले से, बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और दीगर मामला जो उन्होंने जो मुआहदे में सारे मौजूद हैं। लेकिन मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया कि कोलिशंस में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और इससे ज्यादा तजर्बा कौन रखता है इसका कि अब आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी वाले भी मेहमान आपके पास बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल में जब इनकी गवर्नमेंट थी 2008 से 13 तक के, तो उस दौरान उनको बहुत मुश्किलात का भी सामना रहा। बीच में उनके एमक्यूएम को कोलिशन पार्टनर थे, और हर कुछ महीने बाद इसीलिए मैंने एग्जाम्पल कोट की है। अमीनुल हक साहब से भी मैं बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अमीनुल हक साहब। फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीनुल हक साहब, आपकी तबीयत कैसी है? क्योंकि इत्तला थी कि आप भी कोविड-19 पॉजिटिव आया था आपका। जी नादिया, अनफॉर्चुनेटली लास्ट मंडे को आई वाज टेस्टेड पॉजिटिव, एंड उसके बाद मैं आइसोलेशन में हूँ,
اور آج پہلی دفعہ میں کسی پروگرام میں شریک ہو رہا ہوں اور اس میں آپ کا نادم. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ویسے اب؟ یس, ڈے بائی ڈے آئی ایم فیلنگ بیٹر اینڈ بیٹر. چلے الحمدللہ, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت عطا کریں گے. امین الحق صاحب, آج ایم کیو ایم جو تھی وہ بھی ہمیں ناراض نظر آئی. یہ ناراضگی جو ہے جس کا اظہار ہوا ہے, اس کا کوئی تعلق بنتا ہے وزیر اعظم کے حالیہ کراچی وزٹ سے؟ نہیں نادیہ, اگر آج آپ ہماری پریس کانفرنس دیکھیں گی اور جو ایم کیو ایم کے ٹاپ لیڈرشپ نے پریس کانفرنس کی ہے تو ہم نے تو بات کی سندھ حکومت کے حوالے سے. ہم نے بات بالکل کھل کر کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کے جو غیر منصفانہ اور ظالمانہ بجٹ 2020 اور 21 کا تھا, اس کو ہم نے مسترد کرنے کا اعلان کیا. ہم نے کیا کہا, ہم نے یہ فرمایا کہ حکومت سندھ نے شہری سندھ کے حوالے سے متصف پالیسی اختیار کرتے ہوئے صوبہ سندھ کو دیہی سندھ اور شہری سندھ کی بنیاد پر تقسیم کر کے اپنی روایتی پالیسی کو جاری رکھا ہے. ہم نے وہ تمام اعداد و شمار فیکٹ پیش کیا میڈیا کے سامنے اور پاکستان کے عوام کے سامنے, اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کو ایکسپوز کیا ہے کہ ایک طرف وہ جب اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں تو جمہوریت کے چیمپئن بڑھتے ہیں, خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, لیکن جب وہ صوبائی حکومت ان کے سندھ حکومت کو دیکھا جاتا ہے تو عملاً اس کا الٹ ہوتا ہے. اس کا الٹ کس طرح؟ یہ تو ٹھیک ہے, میں ذرا اس کا سیر صاحب سے جواب لوں گی. مختصراً بتا دیجیے گا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں, یا اس وقت آپ سے مراد آف کورس آپ کی جواب ایم کیو پاکستان چاہتی ہے کہ وفاق کسی نہ کسی حالات میں یا کسی نہ کسی اسٹیٹ پہ انٹروین کرے, ان معاملات کو دیکھے؟ نادیہ, آپ یہ سوال مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں سر. آپ ہی چاہ سکتے ہیں, یہ پیپلز پارٹی تو کبھی بھی نہیں چاہ سکتی. دیکھیں جی, فی الحال تو ایم کیو ایم پاکستان اس کی بات نہیں کر رہی ہے کہ انٹرونشن ہونی چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان کیا بات کر رہی ہے کہ آئین قانون کی بالادستی کی, اور اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو حق شہری سندھ کا بنتا ہے وہ اس کو بجٹ میں ریفلیکٹ کرنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی نادیہ, یہ سن کے آپ حیران ہوں گی کہ شہری سندھ یعنی کراچی حیدرآباد جو کہ صوبائی بجٹ کا 90 سے لے کر 95%. امین الحق صاحب, معذرت کے ساتھ شاید آپ میرا سوال نہیں سمجھے, میں مختصراً آپ سے جواب چاہ رہی ہوں. شہر کامران سے مجھے بات کرنی ہے کہ کیا آپ اس وقت چاہتے ہیں کہ وفاق مداخلت کرے؟ نہیں, ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ ایم ایف سی کے ذریعے جو پیسے صوبائی حکومت کو دی جاتی ہے اس کے ذریعے نیچے آرٹیکل 148 کے تحت نیچے بھی تقسیم کی جائے, بس یہ. ٹھیک ہے, اوکے فائن. اب شہر کامران صاحبہ, ان کی ریزرویشنز آپ تک آ گئی ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ نے سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا. یہی مطالبہ آپ وفاق سے تو کر رہے ہیں, لیکن کراچی جو پورا ملک بھی چلا رہا ہے, جو پورا سندھ بھی چلا رہا ہے, اس کے لیے کوئی ایک بھی ترقیاتی پیکج اناؤنس نہیں کیا گیا یا بجٹ میں نہیں رکھا گیا, کیوں؟ دیکھیں بات یہ نازیہ, میرا تعلق کراچی سے, ٹھیک ہے, میں کراچی کے مسائل سے ہوں. میں نے کراچی میں پیدا ہوئی, میں کراچی میں پلی بڑھی, میں نے کراچی میں تعلیم حاصل کی. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں سیاست ایک طرف پاکستان کو پاکستان رہنے دے, ٹھیک ہے. جو اب یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جو وفاقی حکومت کی اس وقت جو حالات ہیں, اور خصوصاً وہ ترکی ڈرامہ جو آج کل وزیر اعظم صاحب دیکھ رہے ہیں جس کے بعد ان کا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے ملک کے مختلف صوبے جو ہیں ان کو وہ فتح کریں, تو وہ اس کی طرف ہمیں پیش قدمی نظر آ رہی ہے. کبھی ہمیں جب سے یہ آئی ہے پی ٹی آئی حکومت, کبھی گورنر راج کی بات سنائی دیتی ہے, کبھی کچھ. ایم کیو ایم کو میں بھی کچھ اس سے نہیں کہوں گی کہ ایم کیو ایم آج کل ایک بہت تناؤ کا شکار ہے, اور ان کے لیے ضروری تھا کہ اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے کوئی پریس کانفرنس کرتے, کیونکہ عمران خان کیس کے بعد جس سب کے حقائق سامنے آئے ہیں, میں ان کے بارے میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کہ میں سب کو ایک اس میں پیمانے میں نہیں ڈالنا چاہتی, لیکن یہ کہ اس کے بعد ان کو یقیناً کوئی نہ کوئی ایک پولیٹیکل نیریٹو لینے کی ضرورت ہے. لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا بھی تعلق کراچی ہے. کراچی میں جو صحت کے ادارے بنے, جو مثالی ادارے ہیں, کراچی میں ایک یونیورسٹی تھی, 14 یونیورسٹی بنی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سندھ حکومت, کراچی ہمارا دل ہے, ہم سب کا تعلق, ہمارے کتنے ممبرز جو ہیں ان کا تعلق وجہ تو بتا دینا صاحبہ, پھر وجہ تو بتا دینا. کراچی کی ترقیاتی پیکج کوئی بھی پروجیکٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ آج جو ہے یہ کوئی ہم آج کوئی پہلی بات ایم کیو ایم کی نہیں سن رہے, اور نہ ہی ہمیں کوئی پہلی چیز سنائی دے رہی ہے. تھوڑے ہفتے پہلے ایم کیو ایم بھی نالا تھی فیڈرل گورنمنٹ سے, اور بلوچستان سے بھی جو آوازیں آ رہی ہیں, ایون کیو لیگ جو ہے اس کے بھی جو تحفظات تھے وہ سامنے تھے. ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں جس طریقے سے
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कराची तशरीफ लाए और उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया सिंध गवर्नमेंट से, तो वो हमें एक ट्रेंड तो नजर आ रहा है जिस किस्म का है। और आप भी देखें कि इस दफा 229 अरब रुपए सिंध हुकूमत को कब मिले, उसकी तमाम स्कीम्स को फेडरल गवर्नमेंट ने काट दिया। NSC अवार्ड में सिंध हुकूमत को उसका शेयर नहीं मिला, और सिंध हुकूमत जो है जो मैक्सिमम इन्वेस्ट कर रही है वो हेल्थ केयर, वो मेरा ख्याल है इसलिए नहीं मिला, वो इसलिए नहीं मिला कि आपने PFC में कुछ नहीं आपने लोकल गवर्नमेंट को दिया। देखिए, बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट जो है उनके जो शेयर है वो उनको बिल्कुल मिल रहे हैं। और आप PFC अवार्ड आपने रखा अपने बजट में? एक मिनट आपने PFC अवार्ड में कोई एलोकेट किए रकम? हुकूमत को जो वसाइल मिल रहे हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और इक्वली देखना है। फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट स्कीम अनाउंस कर रही है, वो डायरेक्ट KMC को दे रही है, वो डायरेक्ट जो है इनको फंड कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग इंस्टेबिलिटी इन द प्रोविंस। और मैं MQM को कहूंगी कि आपने कराची में रहना है, आपने सिंध में रहना है, आपने सिंध में सियासत करनी है, आपका एक पाकिस्तान में अहम रोल है। आप खुदारा ये इस वक्त की जो एक ऑब्जेक्टिव सियासत है, मैं इसका जवाब अभी नहीं लोग आपको दूंगी, लेकिन पहले मेरा वली इकबाल साहब से बात करें। का सामना है, आपको यकीनन मसाइल का सामना है, उनका बेहतर तरीके से करें। हम एडवांटेज नहीं ले रहे सिचुएशन की। वली इकबाल साहब, ओके, हमारे सवाल आपके ऊपर आपके अंदर से उठ रहे हैं, बयानात आपके अंदर से आ रहे हैं, मुस्तफा कमाल के बयानात आ रहे हैं, आपके अपने मेंबर्स के बयानात आ रहे हैं, आप उनका सामना कर रहे हैं। आप बुर्दबारी से करें, आप उसका रुख दूसरी तरफ मोड़ने के लिए इस किस्म के मसाइल न खड़े करें। हमें इस वक्त जो है पाकिस्तान के भी वलीद इकबाल साहब से बात करने थे। वलीद इकबाल साहब, MQM आपकी अहम इत्तेहादी है और इन हालात में तो बहुत ही ज्यादा अहम इत्तेहादी है, समझ तो गए होंगे आप। ऐसे में अगर वो उसकी रिजर्वेशंस हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के मुताले, पीपल्स पार्टी के बजट से मुताले जो उन्होंने रद्द कर दिया, कराची को लेकर उनके बड़ी रिजर्वेशंस हैं, कराची के मसाइल आप भी बखूबी वाकिफ है। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने हर एक का इत्तेहादी होकर देख लिया, कराची का मसला हल नहीं हुआ। कराची ने 14 सीट्स दी आपको, पहली दफा PTI को उन्होंने वोट दिया, लेकिन कराची को क्या मिला, क्या फायदा हुआ कराची को आपको वोट देने का? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अभी मौजूद भी हैं मेरे कोalition के साथी जो अमीन साहब हैं, और आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली। उन्होंने नाराजगी का इजहार अपने कोalition पार्टनर PTI से तो नहीं किया, उन्होंने तो नाराजगी का इजहार प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको रन कर रही है PPP उससे किया है। और ये आपने जिक्र नहीं किया लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि, और ये बिल्कुल आपके सवाल का एक मखसूस जवाब भी है, कि ये MQM ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PPP की सूबाई हुकूमत ने बदला लिया है वोटर्स से कि जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया। यस, PPP को वोट नहीं दिया, MQM को दिया है या PTI को दिया है, और उसका वो बदला ले रहे हैं। और इस बार इस हवाले से जरा एक और भी तफसील मैं आपको अर्ज कर दूं। कराची की डेवलपमेंट और कराची में तरक्याती काम सबसे ज्यादा, जो भी मेरे अपनी सियासी पोजीशन हो या मुझे तस्लीम करना मैं अपनी मजबूरी भी समझ लूं, वो ये है कि तब हुए थे जब जनरल मुशर्रफ की जो है वो हुकूमत थी। और उसकी एक वजह और उसकी सर फहरिस्त वजह ये थी कि उस दौरान में लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था। पहले इवन दो जनरल मुशर्रफ के मुखालिफ पार्टी कराची को जो है उन्होंने विन किया था, जो नियामतुल्लाह साहब मेयर बने थे और वो जमात इस्लामी से थे, लेकिन उसके बाद फिर MQM कामयाब हुई। उस वक्त MQM में ही थे मुस्तफा कमाल साहब, तो वो उन दोनों अदवार में नियामतुल्लाह साहब जब मेयर थे और या नाज़िम थे, और जब उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब नाज़िम थे, सब जानते हैं। और कराची में रहने वाले खासकर, और जो कराची विजिट करते थे मेरे जैसे और करते रहते हैं ऑफ एंड ऑन, कि सबसे ज्यादा तरक्याती काम तब हुए। और ये भी एक शिकायत आज थी कि मकामी हुकूमत को, जो कि एक एक्सक्लूसिवली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात में और जिम्मेदारियों में किसने डाला है? हमारे आइन के आर्टिकल 140A ने डाला है, क्योंकि 18वीं तरमीम के नतीजे में आया कि लोकल गवर्नमेंट को, मकामी हुकूमत को एम्पावर करने का जो जिम्मेदारी भी है और इख्तियार भी है वो सूबाई गवर्नमेंट का है। वो उससे भी, उस जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं उसने किया। और आप देख रहे हैं
मैंने आपको अर्ज किया ना कि तरक्याती काम तभी हुए हैं कराची में, और सही कराची की खिदमत तभी हुई है जब वहाँ मकामी हुकूमत एम्पावर्ड थी, और वो सूबाई गवर्नमेंट ही कर सकती है मौजूदा आइन। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप वलीद इकबाल साहब। आप मुशर्रफ साहब की एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, और नेमतुल्लाह खान साहब की, तो लोकल गवर्नमेंट एम्पावर हुई, कोई शक नहीं है, बेहतरीन तरक्याती काम हुए, कोई शक नहीं है, लेकिन ये ना भूलें कि वफाक ने 29 अरब का पैकेज दिया था कराची को, तब जाके कराची के ये काम हुए थे। आप क्या से जो पैकेज अभी अनाउंस हुआ है उसका तो कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं बेखबर हूँ। अगर आपके इल्म में तो आप बता दें, वरना फिर मैं अमीनुल हक साहब से पूछ लूँ। नहीं, आप अमीनुल हक साहब से ही पूछ लें। उन्हीं से पूछ लूँ। तो अमीनुल हक साहब फिर आप बता दीजिएगा कि सिंध हुकूमत से तो जो आपके गिले शिकवे हैं वो आपने कर दिए, वफाक ने जो पैकेज अनाउंस किया था 160 अरब, आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसका क्या स्टेटस है? नादिया, गुड एंड पॉजिटिव थिंग कि हमारी अब से तकरीबन 4 हफ्ते पहले तमाम अराकीन कौमी असम्बली के साथ मैंने खुद असद उमर साहब से और उसके बाद फॉलो अप में प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी, और उन्हें वो तमाम पैकेजेस के हवाले से याद दहानी कराई थी। आज PSDP मेरे हाथ में मौजूद है। आप इसका अगर पेज 5 खोलेंगी तो उस पेज 5 के अंदर आप देखेंगी कि पाकिस्तान की सियासी तारीख, यानी 70 साल तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि वफाकी हुकूमत बहालत मजबूरी, क्योंकि कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में सिंध की हुकूमत काम नहीं करती है, तो उन्होंने पैकेज बाकायदा तकरीबन 30 अरब रुपए का पैकेज डाला इसके अंदर है। और उस पैकेज में गुड बात यह है कि ग्रीन लाइन मंसूबा जो कि पिछली हुकूमत ने शुरू किया था, उसके ऊपर इन्होंने ऑन गोइंग में 3 अरब रुपए डाले, और नहीं, यानी कि आपको नादिया याद होगा, वलीद साहब को भी याद होगा और शहर कामरान को भी याद होगा कि जब पिछले वजीर आजम जब कराची गए थे 2016 में, तो ग्रीन लाइन के बसों के हवाले से उस वक्त के चीफ मिनिस्टर प्राइम अली शाह ने ऐलान किया था कि 80 बसें हम देंगे। वो 80 बसें नहीं मिली तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की, आई एम वेरी प्लीज कि प्राइम मिनिस्टर ने बात मानी, और तकरीबन 7 अरब 95 करोड़ रुपए ग्रीन लाइन के मंसूबे पर रखा गया। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसके साथ साथ पहली दफा, यानी कि आपको मैं सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता पढ़ के सुना देता हूं कि बाकायदा पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में रखा गया कि इम्प्रूवमेंट, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड स्टेट इंक्लूडिंग वाटर एंड सीवरेज सिस्टम एट वेरियस मेन रोड एंड अर्बन काउंसिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, सिटी एंड लतीफाबाद। यानी अंदाजा लगाएं कि ये शर्म की बात है, किसकी जिम्मेदारी थी? ये तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, लेकिन सूबाई हुकूमत कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को पानी की बूंद बूंद को तरसाती है। कराची, हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है, तो बहालत मजबूरी वफाकी हुकूमत कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, मीरपुर खास के लिए इंटरवेन किया, और उन्होंने वफाक से पैसे दे रही है। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द फेडरल गवर्नमेंट के एटलीस्ट कराची तरक्की करेगा, हैदराबाद तरक्की करेगा, तो इसका मतलब है पाकिस्तान तरक्की करेगा। कराची मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि मुख्तलिफ है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट साउथ, मीरपुर खास, नवाबशाह के शहरी इलाकों के लिए भी वफाकी हुकूमत ने पैसे रखे। साथ साथ हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जो नादिया आपको पता है कि पिछले 40 साल से हम मुतवातिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुतालबा करते हैं। अमीनुल हक साहब माजरत के साथ, यकीनन मुझे पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी बता दिया, और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, आप लोग वक्तन फवक्तन बताते रहते हैं। इसका हल की तरफ आए ना, वन फॉर ऑल, इसके हल की निशानदेही करें, हमें बताएं कि इसका वे आउट क्या है, जो ड्यू राइट्स हैं वो कैसे मिलेंगे, उसकी भी बात करें ना। अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से आप मांगते हैं, वो नहीं देते, आप कहते हैं ओके, खत्म हो जाती है बात। क्या किया जाए? नादिया, वेरी सिंपल हल है। मेरी बहन सायर कामरान ने कहा कि शी बाउंड इन कराची, शी ग्रूम इन कराची, शी लिव्ड अ लॉन्ग पीरियड इन कराची। वलीद भाई कराची का दौरा करते रहते हैं, जिस खानदान के चश्मो चिराग है, मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान और बिलखसूस कराची इनकी बड़ी इज्जत करता है। सिंपल सी बात है कि आप ताशुब की बात खत्म कर दें, जिसका जितना मैंडेट, मैंने जमहूरी तरीका, जिसका जितना मैंडेट उतना उसको हक दिया जाए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जब ये बात हो जाए, अमलन होना शुरू होगी, तो ना ताशुब की बात, ये हक कौन देगा? अमीनुल हक साहब, ये हक किसने देना है? ये हमें इस बात की बड़ी उम्मीद थी कि इनके टॉप लीडर, यंग लीडरशिप जो आई है, वो भी कराची में पैदा हुई है, कराची में तालीम हासिल की है, तो हमें उम्मीद थी कि, लेकिन वक्त गुजरते के साथ साथ वो तमाम उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। आज अगर ये सिंसियरिटी के साथ बैठे
कराची के मेयर को अपने साथ बैठाएं, हैदराबाद के मेयर को अपने साथ बैठाएं, मैं जरा सैर कामरान से बात कर लेती हूँ, बैठाएं तो चीजें हल हो सकती है। ठीक है, सैर कामरान साहब, वज़ीर आज़म जब कराची आए तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आला से मुलाकात नहीं की, उन्होंने कहा कि इस वक्त वज़राए आला के पास जितने इख्तियारात हैं वो किसी आमिर के पास होते हैं। अगर वो शख्स जो वज़ारत आला के मनसब पे बिराजमान है, अगर कराची के जो जायज़ हुकूक हैं या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जिसका जिक्र हुआ है या जिक्र होता रहा है, वो अदा नहीं कर सकते, तो फिर एक वक्त आएगा कि मजबूरी होगी वफाक की तरह देखना। और वफाक के पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि गवर्नर राज, तो वो यकीनन आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। राजिया कोई नई बात बताए ना। देखिए, आप ये देखें, जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, मैंने कहा ना, जब से वो ड्रामा क्रिकेट देख रहे हैं तब से कुछ ज्यादा जज्बा जाग गया है। इमरान खान अपनी तलवार लहराते हुए आ रहे हैं और कहते हैं मैंने दिल को पता करना है। देखिए, आप जरूर करें पता, पाकिस्तान को पता करें, आवाम के दिलों को पता करें, मगर ये जो आपकी अज़ाइम है ना, फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट मत करें। देखिए, एमक्यूएम के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहती कि मैं नहीं चाहती कि हम उन मामलात को डिग करें। आप परवेज मुशर्रफ की बात करें, कल से परसों से अब तक, जब तक से वो इमरान फारूक का केस और बयान सामने आए हैं, तो आप ये बताएं कि जिस किस्म के नैरेटिव खुद विद इन एमक्यूएम निकल रहे हैं, ठीक है, आप उसके सामने, हमने तो किसी चीज का एडवांटेज नहीं लिया। उन तमाम हालात के बाद जो रिविलेशन हो रही हैं, उनके बाद एमक्यूएम का रोल जो भी रहा, देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की बात की। ऐसी बात नहीं कि मेयर साथ नहीं बैठे, मेयर को हमेशा साथ दिखाया। और जहाँ पे अब माशाल्लाह से 14 जो है वो मेंबर जो है वो पीटीआई के इलेक्ट हुए हैं, फिर उनके एलाइज हैं, एक गुड नंबर है। आपका वफाक तो सिंध हुकूमत के एनएफसी अवार्ड पे और शेयर पे छुरियां चला रहा है, यही बलूचिस्तान के साथ कर रहा है। अख्तर मेंगा साहब का क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जब वफाक खुद एक छुरी चला रहा है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो गया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी एक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हुआ था। देखिए, ऐसी बातें करके और महज आवाम के जो है सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके और फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करके आप जो है क्या कर रहे हैं? बाकी कंट्रोल आप करें, आप अगर अच्छा चला रहे होते हमें तो कोई एतराज नहीं होता। इमरान खान साहब जो है वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि वो आते हैं, वो तो अगर मीटिंग्स में है तो आप चीफ मिनिस्टर का माइक बंद कर देते हैं, आप उनको आने से मना कर देते हैं, आप कराची जाते हैं, आप मिलना पसंद नहीं करते, आप जो है आप चाहते हैं तो आप यही फंड जो है सिंध गवर्नमेंट के थ्रू भी दे सकते हैं। मैं जरा एक डिवीजन वलीद इकबाल, ओके फाइन, सर कमान साहब एक मिनट दीजिएगा। वलीद इकबाल साहब, आमिराना ज़हन के साथ आइन के ऊपर जो है लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बात हो रही है। लोकल गवर्नमेंट एम्पावर तब होगी जब जिस तरह से एनएफसी अवार्ड की बात होती है, इसी तरह से पीएफसी अवार्ड के लिए भी रकम रखी जाएगी माजिद के साथ। और ये बात फवाद चौधरी साहब ने भी की कि किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी सूबाई हुकूमतों ने पीएफसी अवार्ड को एलोकेट नहीं किया। बड़ी जरूरी है। सिंध हुकूमत कहती है एनएफसी देंगे तो पीएफसी दे देंगे। एनएफसी का भी इरादा है आपका? फवाद चौधरी साहब ने अजुबी खलफचार को एक्सपोज कर दिया। फवाद चौधरी की बात आपने बहुत अच्छी की। फवाद चौधरी साहब ने बताया कि पीटीआई के अंदर भी खलफचार है, वो अलग सब्जेक्ट है। सैर रुक जाए ना, वो अलग सब्जेक्ट है। सैर वो अलग सब्जेक्ट है, वो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, उसको अभी ना छेड़े। जी वलीद इकबाल साहब, वलीद इकबाल साहब, यहाँ पे बात हो रही है एनएफसी अवार्ड की कि आप एनएफसी अवार्ड देंगे तो फिर पीएफसी अवार्ड सूबाई हुकूमतें देंगी। तैयार हैं आप इसके लिए? जब आपको आता है कोविड के आपने वसाइल। वलीद इकबाल साहब से मैं सवाल कर रही हूँ, सर प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सर प्लीज जरा रुक जाएगा, प्लीज जरा रुक जाएगा, मुझे वलीद इकबाल साहब से बात करने दीजिएगा। वलीद इकबाल साहब, वलीद इकबाल साहब आवाज आ रही है आपको? जी वलीद इकबाल साहब, फिर मामला आ जाता है कि अगर स्ट्रेंथन करने की बात है लोकल गवर्नमेंट को तो पीएफसी अवार्ड और पीएफसी अवार्ड को से नफी कर देते हैं एनएफसी अवार्ड से। मैं आपको बल्कि आप सॉरी जरा एको आ रही है, इसको जरा कंट्रोल कराइएगा। आपने सैर कामरान साहिबा से ये सवाल पूछा था अभी, जिसके जवाब में काफी तफसीली गुफ्तगू इन्होंने की और बहुत से और ज़िमनी मौजू भी आ गए बीच में। सवाल आपका ये था कि मसलन आप सवाल का एक हिस्सा यही खुसूसन था कि कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सेंटर को, कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सेंटर और नहीं मैं समझ गया हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सेंटर और ये जो अपना बिग सिटीज हैं, इनकी डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा जिम्मा किस पे होता है? और मैं उसका जवाब पहले ही दे चुका हूँ, बल्कि मैंने जवाब नहीं दिया, वो तो आइन कहता है आपका। और वो फ्रंट लाइन जिम्मा
इस डेवलपमेंट का प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, जो आज की MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइस भी बना। और उस हवाले से अमीनुल हक साहब का मैं दोहरा शुक्रिया अदा करता हूँ, सियासी सतह पे भी और ज़ाती सतह पे भी। पहला कि इन्होंने वाज़ेह किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो किया ही था, आपके प्रोग्राम में और सवाल के जवाब में भी वो कर चुके हैं कि उनको वफाकी हुकूमत से शिकायत नहीं है, बल्कि उन्होंने तो वफाकी हुकूमत ने जो इक़दाम PSDP के किए हैं सफ़ा 5 पे उन्होंने बताया, उनका खैर मकदम किया है। और ज़ाती सतह पे मैं उनका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अल्लाह ताला उनको खुश रखे और लंबी उम्र दे, और हमें भी तौफीक दे कि जिस तरह से भी देखें, फेडरल गवर्नमेंट का एक सेकेंडरी रोल है, और वो उसमें जिस तरह उन्होंने ग्रीन लाइन के हवाले से, और असद उमर साहब ने असेंबली में जो 17 या 16 तारीख को तकरीर की थी, उसमें भी तफसील से उन्होंने कराची के डेवलपमेंट के हवाले से भी PSDP के ऊपर रोशनी डाली थी, जिस पे अभी मजीद जो तफसीलात जो हैं वो अमीनुल हक साहब ने दी हैं। तो मैं फिर यही दोहराऊंगा कि फ्रंट लाइन या सफ़े अव्वल का इस पे ज़िम्मा भी और इसके इख्तियारात भी सूबाई हुकूमत के पास हैं, और सूबाई हुकूमत जो है वो इसमें जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीनुल हक साहब और उनके साथियों ने ये बात की कि लगता है कि कोई ऐसा बदला ले रही है उन वोटर्स से जिन्होंने उनके अलावा किसी दूसरी पार्टी को जो है वो कराची के हवाले से मुंतखब किया, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और जिस तरह आज तो उन्होंने बहुत सी और भी तफसीलात दी कि टैक्स रेवेन्यू जो है सूबे को कितनी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कराची, और वो सारा कुछ, और फिर उसको शेयर कितना मिलता है डेवलपमेंटल कामों का। और मैं फिर वही दोहराऊंगा जो मैंने शुरू में बात की कि कराची में सही तरक्याती काम और सही डेवलपमेंट उसी वक्त हुई, वो जो भी चले जैद का दौर हो या बकर का हो, वो दौर था जिसमें वो इख्तियारात जो आज के आर्टिकल 140A में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो निचली सतह तक मुंतकिल करें, वो इख्तियारात, वो फाइनेंशियल पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो थे वो निचली सतह तक गए हुए थे, तभी वो हुआ, और वही उसका सोल्यूशन है। और अगर वो नहीं हो रहा तो उसकी सबसे पहले जवाब दे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज और इम्पोर्टेंट चीजों पे भी बात हुई। इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने कोविड-19 को लेकर उन्होंने बात की कि हम जिस तरह से एहतियात नहीं कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी अगर हमने एहतियात का दामन हाथ से जाने दिया तो जून का एंड और उसके बाद जुलाई कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के हवाले से जो है वो बहुत ही ज्यादा एक पीक होगी और बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हो सकेंगे। कराची के हवाले से अगर मैं बात करूं, सिंध के हवाले से बात करूं, सिंध में जिस तरह से इनिशिएटिव शुरू में लिए गए, सबकी बहुत ज्यादा सबने उसको अप्रिशिएट भी किया और सारी हर जगह पे वाह भी हुई, लेकिन उसके बाद लगा ये मामला कि तमाम के तमाम मामला जो है वो पोलिटिसाइज होते चले गए। अमीनुल हक साहब, मैं जरा अब इस इशू पे आ जाती हूँ कोविड-19 के हवाले से, और आपको जो है वो इस वक्त इम्पैक्टिव भी है। कराची में जो इस वक्त हिकमत अमली या सिंध में जो इस वक्त हिकमत अमली अपनाई जा रही है कोविड-19 के हवाले से, वो कहते हैं कि हम इस स्मार्ट लॉकडाउन के हक में नहीं है, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है कि सब कुछ बंद नहीं करना, इसलिए तो ये हिकमत अमली जो है वो कामयाब हो रही है वहाँ पे स्प्रेड होने से होने के खिलाफ। देखिए नादिया, जब शुरू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोविड के हवाले से मीटिंग की, आई डिड रिमेम्बर प्रोबली गालिबन फरवरी का एंड था, और MTM के टॉप लीडरशिप के भी इस पे बुलाया। हमने वसील कल्बी वसील नजरी का मुजाहरा किया और MTM के टॉप लीडरशिप वजीर आला हाउस गई, उनके साथ मीटिंग में शरीक हुई और वजीर आला को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। आई रिपीट, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया कि आप लॉकडाउन करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। और साथ साथ उन्होंने इसके साथ साथ ऐलान किया था कि इमदादी सामान भी तकसीम की जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, इमदादी सामान के ऊपर घपला नजर आना शुरू हुआ, इमदादी सामान एक्सपायरी डेट के हवाले से चीजें सामने आना शुरू हुई। इसके साथ साथ जिसे कहते हैं जालों के जरिए सामान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुंतखब MPs, MNs, डिप्टी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को नजरअंदाज करके जिसे कहते हैं कि अपने लोगों के जरिए तकसीम करने की शुरू हुई। तो वहां से MTM ने अपने आप को डिस्टेंस किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के साथ। MTM पाकिस्तान ये समझती है कि यस स्मार्ट लॉकडाउन ही असल मसाइल का हल है, क्योंकि आप देखिए कि कराची सबसे बड़ा शहर है, कराची सबसे ज्यादा कमा कर देता है। अगर आप इसके तमाम सिस्टम को बैठा देंगी तो फिर चीजें चलेंगी कैसे। इसी दौरान आप देखें कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में तमाम ताजिरों ने
तमाम फेडरेशन ने एमकेएम से रब्ता किया, एमकेएम के साथ ज्वाइंट मीटिंगें की हैं और फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब हालत मजबूरी फिर हमने जोर नहीं, मैं आपसे अमीनुल हक साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर एक थोड़ा सा मसला है ना। सूबाई हुकूमत कहती है कि लॉकडाउन हो तो पूरा लॉकडाउन हो, वो इस लॉकडाउन के हक में नहीं है। वफाक कहता है कि लॉकडाउन हमें स्मार्ट लॉकडाउन की हद तक ही चलना है क्योंकि हमने अपनी मईशत भी बचानी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कराची का, स्पेशली जो स्मार्ट लॉकडाउन है, उसके रिजल्ट, उसका कोई आउटकम निकल नहीं रहा, केसेस में मजीद इजाफा हो रहा है। आपकी जमात का स्टैंड क्या है, मुकम्मल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन? नहीं, देखिए इसमें हमारे दो चीजें, यस स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए और जिन जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन हो मेक श्योर किया जाए कि वहां के मुंतखब नुमाइंदों को शामिल किया जाए। मैं एक छोटी सी मिसाल देके दूसरी तरफ आपके जवाब की तरफ आता हूँ। आज से 1-1.5 महीना पहले सिंध की हुकूमत ने कराची के कुछ इलाकों में लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया। खुदा की कसम आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो तमाम यूसी के नंबर इनको पता ही नहीं थे, उल्टा सीधा डाल दिया इन्होंने। वो अगर आप मेयर को इन्वॉल्व करेंगी, यूसी चेयरमैन को इन्वॉल्व करेंगी तो पता लगेगा। तो स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, मुंतखब नुमाइंदे को अब शामिल करते हुए। अच्छा, बस 2 सेकंड मुझे और दे दे कि यस, साथ साथ इमाम को भी प्रीच करना होगा कि वह स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से अपने अपने घरों में महदूद रहे। हर सूरत में जो एसओपी है उसको सख्ती से फॉलो किया जाए और एमकेएम इस मामले में मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेगी एसओपी के हवाले से। ठीक है सैर कामरान साहब, यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं। एक चीज ये कही जाती है हुकूमती सतह पर कि जब एनसीओसी एनओसी का जब इजलास होते हैं तो मुराद अली शाह साहब तमाम चीजों पे कंसेंसस होता है, वो सब बातों पे हाँ करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो प्रेस टॉक करते हैं और जब शाम के जब टॉक शो शुरू होते हैं तो फिर कॉन्ट्रोडिक्शन पॉलिटिक्स सामने आती है और उसको फिर वो पॉलिटिक्स करने लगते हैं। दूसरी बात, स्मार्ट लॉकडाउन कराची भी हो रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन इस्लामाबाद भी हो रहा है। इस्लामाबाद में केसेस कम हो रहे हैं, कराची में केसेस ज्यादा हो रहे हैं, वजह? देखिए, पहली बात है नादिया, मैं आपको कहूँ कि कोविड के मसले पे खुद वजीर आजम इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने जितना कौम को कंफ्यूज किया कि वो नजला है, फिर अभी तो आप देखिए क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर ने एक जो डेफिनेशन ले आई कोविड-19 की, तो मैं तो स्टेट ऑफ माइंड को समझने से कासिर हूँ। आपने बात की, वलीद इकबाल साहब ने बात की थी लोकल गवर्नमेंट की, तो मैं सिर्फ मासूमाना सवाल है कि पंजाब और केपी में क्या लोकल गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड है और क्या नहीं है। जो अमीन हक साहब ने बात की कि जी हम ये चाहते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन हो थ्रू जो हमारी जो यूनियन काउंसिल्स हैं और लोकल गवर्नमेंट है, तो सिंध हुकूमत से तो यही तजवीज़ दी थी ना। आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक डायरेक्ट लेटर भेजा डीसी को कि जी आप जो है टाइगर फोर्स के जरिए करवाएं। देखिए, इतना कंफ्यूजन जो फैलाया गया है इसके बड़े नुकसानात हुए हैं। पीपल्स पार्टी के लिए और कोई चीज अहम हो या ना हो, आवाम की जिंदगी और सेहत, उनका लाइवलीहुड, उनकी बेसिक नीड्स और उनके राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये देखें कि जो कहते हैं कि कराची को आइसोलेट किया, सबसे ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज कराची में है, सबसे ज्यादा एजुकेशन कराची में है। और इस मसले के ऊपर भी हमारा मकसद ये था कि आप इनिशियली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें क्योंकि पाकिस्तान के अंदर केसेस कम थे। अगर मैं आपको मुख्तसर बताऊं नादिया कि 6 मार्च को सिर्फ 6 केसेस थे, 6 अप्रैल को 3,864 केसेस थे, 6 मई को 24,073 केसेस थे, 6 जून को 98,943 केसेस थे, 7 जून को 1 लाख केसेस थे और आज 1,86,594 केसेस हैं। ठीक है, जब इस हद तक आपकी ये इसलिए बढ़ी क्योंकि आपने कंफ्यूज किया, आपने बाद जमात नमाज की इजाजत दी, आपने एसओपीज बनाए जिन पे अमल नहीं हो सकता था। आप ऐसे वक्त में जब काबा बैतुल्लाह के अंदर तवाफ मौकूफ था, जब मस्जिद नबी के अंदर जो है बाद जमात नमाज जो है उस पर पाबंदी थी, आपने हर वो चीज की जिससे ये कोविड फैले, चाहे वो आपकी क्वारंटीन फैसिलिटी थी पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर या ट्रांसपोर्टेशन थी। लास्ट पॉइंट नादिया, इन्होंने जो गवर्नर ने और जो फेडरल गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया, इन्होंने इंस्टिगेट किया बिजनेस कम्युनिटी को। अगर आज एक आप बिजनेसमैन जिससे आप मिलते हैं, आप उसको अपने जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड का हेड बना देते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, आप ये सब कुछ करें, मगर फॉल्ट लाइन को इसलिए एक्सप्लॉइट न करें कि आपके पॉलिटिकल माइलेजेस हो। इन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया और कहा कि जी आपने लॉकडाउन पे अमल नहीं करना। और फिर आपने जो बात की मुराद अली शाह की, जरूर मैं कहूंगी ये ओपनली चेयरमैन पीपल्स पार्टी जरदारी ने भी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने भी कहा है कि आपकी जो मीटिंग है वो रिकॉर्ड होती
गोलियां आप रिकॉर्ड ऑन करें। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो मीटिंग से बाहर भी वही है, मीटिंग के अंदर भी वही है, और कंसेंसस। मैं वलीद इकबाल साहब से भी जरा पूछूं, मेरे पास टाइम लिमिटेड है। वलीद इकबाल साहब, कोविड-19 को लेकर नेशनल पॉलिसी नहीं बन सकी, आपको लगता है कि इन हालात में कोई बन भी सकेगी? देखें, ये जो अभी खान साहिबा ने कहा, ये भी उसी बात की अक्कासी करती है कि जो जिन फैसलों पर ये तनकीद भी कर रही हैं और गिनवा के कर रही हैं, ये एक इनफरादी किसी ना फेडरल गवर्नमेंट के और ना प्राइम मिनिस्टर के फैसले हैं। ये दो सतह पे होते हैं। पहले NCOC जो डेली मीट करती है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिसकी असद उमर मीटिंग्स को चेयर करते हैं, वहाँ पे भी हर सूबे की नुमाइंदगी होती है। तो चीफ मिनिस्टर नहीं तो चीफ सेक्रेटरी या सीनियर ऑफिशियल होते हैं, और सारे फैसले जिन पे अब तनकीद भी हो रही है, या अच्छे हैं या बुरे हैं, वो मुश्तरका और इत्तफाक राय से मुश्तरका फैसले के तौर पे जो हैं वो दिए जाते हैं, और फिर उन पे अमल दरामद होता है। और फिर उससे ऊपर की सतह जो है वो नेशनल कमांड सेंटर है, NCC, जिस पे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, और वहाँ चीफ मिनिस्टर भी आते हैं वीडियो लिंक से, और तमाम चीफ मिनिस्टर्स जो हैं। तो ये सारे फैसले तो जो हैं वो जिस तरह वजीर इत्तलाआत और नशरियात ने भी कहा कि वहाँ फैसले ऑन बोर्ड फैसले जो किए जाते हैं उन पे ऑन बोर्ड होते हैं, और बाहर जाके फिर उसके ऊपर जो है वो शोर शराबा शुरू हो जाता है। और ये दुरुस्त फरमा रहे थे अमीनुल हक साहब कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो एक मौसर तरीका है, और यस, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली तकरीर में ही सबसे ये कहा था कि कोई हुकूमत जो है वो अकेली ये काम नहीं कर सकती, इस चैलेंज का सामना नहीं कर सकती। उसी तकरीर में उन्होंने कहा था कि ये एक फ्लू की तरह है, बट यस, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हमेशा होती है। मैं हमेशा इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने कहा था, और आप दुनिया का डेटा देख लें कि ज्यादातर लोग जो है वो उससे सेहतयाब हो जाते हैं, और वो शरह देख लें दुनिया में कि कितने लोगों को हुआ है, कितने लोग सेहतयाब हुए हैं, कितने लोग जो है वो उससे जो है वो उसका निशाना बने हैं और उन्होंने इंतकाल कर लिया है। ये उन्होंने कहा, और उसको बिल्कुल किसी और तरीके से उछाल दिया गया। उनका यही था कि ज्यादातर लोगों के लिए ये, और कई लोगों के में तो उसमें सिम्टम्स भी नहीं आते। और फिर उन्होंने उस तकरीर में ये कहा कि जी खुदारा, अगर आपको जो हल्का सा कोई बीमार हो या क्या, तो टेस्ट कराने ना चले जाएं। वो उन्होंने उस दिन कहा था जब हार्डली मुल्क में 2 टेस्ट करने की लेबोरेटरीज थी। आज 129 लेबोरेटरीज हैं, और आज जो है कैपेसिटी टेस्ट करने की वहां दिन में हार्डली 100 टेस्ट हो सकते थे, अब अभी हो रहे हैं 30,000 और 50,000 तक जो है कैपेसिटी इंशाल्लाह करीब इसी महीने के अंदर चली जाएगी। बातें ठीक है आपकी दुरुस्त है। आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो ज्यादा गंभीर होगी, क्योंकि एक तो एक हम जिस तरह से देख रहे हैं कि ईद की शॉपिंग और इन सब की वजह से जो है वो बदएहतियाती इंतहाई हुई है। अब आने वाले दिनों में बकरीद भी है, और उसके बाद मुहर्रम हराम भी शुरू हो जाएंगे, उसके भी अपने जलसे जुलूस, वो उसके लिए भी SOPs की तैयारी किन मराहिल पे है, ये इस हवाले से कुछ आप अपडेट कर सकेंगे? क्या SOPs बनाए जा रहे हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी नहीं, मैं क्योंकि उन बॉडीज का हिस्सा नहीं हूँ जहाँ पे वो SOPs बन रहे हैं, तो इसके बारे में तो मेरे पास कोई बराह रास्त इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का जरूर इल्म है और अंदाजा है कि SOPs और उनको तश्कील देना और उसकी अमल दरामद जो है वो एक टॉप प्रायोरिटी है। बल्कि गुज़िश्ता रोज जो वफाकी वजीर तालीम है शफकत महमूद साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया, और उधर भी तमाम सूबों से सिफारिशात जो हैं उनको दावत दी जा रही है, इनवाइट की जा रही है, उनकी रिकमेंडेशंस और उनकी इनपुट कि SOPs को तश्कील दे के और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर तालीमी इदारों को भी खोला जाएगा। अच्छा, और ये ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आपने मेरी तवज्जो, बड़ा शुक्रिया आपका, आपने मेरी तवज्जो उस तरफ कराई है। शेर कामरान साहिबा, क्योंकि अब यहाँ पर बात हो रही है कि मेजोरिटी वालिदैन चाह रहे हैं कि तालीमी इदारे खोल दें। शफकत महमूद साहब कह रहे हैं कि हम इसमें मुकम्मल SOPs के साथ हम अपनी तजावीज़ सूबों से मांगी भी हैं। सिंध का क्या स्टांस है इस पे, क्या कहता है सिंध तालीमी इदारों के खोलने के हवाले से? देखिए, मैं कहूँगी कि जिंदगी और सेहत, आपके बच्चे जिंदा हैं, हयात हैं, सेहत के साथ हैं, तो तालीम है। और मैं समझती हूँ कि दिस इज अ टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। आपको जो है अपने आप को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड करना होगा। सिंध हुकूमत में यकीनन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है जोर दिया जा रहा है, मगर ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिस तरीके से कोविड को एक अलमिया बनाया गया है पाकिस्तान में, मैं समझती हूँ कि इसके नताइज जो है वो बहुत खतरनाक होंगे। चलिए, मैं लास्ट मिनट है,
मुझे अमीनुल हक साहब से भी जरा बात करिए। सैयद साहिबा, अमीनुल हक साहब, स्कूल खुलने के हवाले से और आने वाले वक्त में नए SOPs के साथ आने से क्या तजवीज़ है MQM पाकिस्तान की? देखिए, मैं समझता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी बकरीद हमारे सर पर है और जानवरों की मंडी के हवाले से भी बातचीत की जा रही है। गुड पॉजिटिव थिंग ये है कि सिंध हुकूमत ने कुछ जो NOC जारी किए थे उसको कैंसिल भी कर दिया है, अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। और इसी तरह जहाँ तक स्कूलों की बात की आपने, स्कूलों के हवाले से मैं समझता हूँ कि शायद SOPs कुछ प्राइवेट या बड़े स्कूलों में तो मेंटेन हो जाए, लेकिन छोटे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी MQM की बिल्कुल वादा पॉलिसी है और हमने अपने MQM के अपने ऑफिसर्स को भी फिलहाल SOPs के तहत ही खोलने चंद घंटों के लिए, तो मैं समझता हूँ स्कूलों के हवाले से आगे बढ़ते रहना। कमरान साहब आपका भी, वलीद इकबाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन ये है कि स्कूल खुलने के लिए बात तो हो रही है, लेकिन डेफिनेटली सुबह से तजावीज़ मांगी है। मुझे याद है सुबह से में सईद गनी साहब ने कहा था कि हम स्कूल सबसे आखिर में खोलेंगे जब ये सूरत हाल होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमें खुमियाजा भुगत चुके हैं।